इन तमाम गानों के। बाबुल सुप्रियो साहब, कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्शन इनका, और साथ ही कुछ बड़े अनोखे। Most of you do not know that Kishore Kumar actually walked into Hemaji's house one day. I'm not adding any spice to the story. This is, as they say in the brackets, SIC. It's like that. And actually convinced Hemaji's mother. I think he was a very smart man. So he convinced Hemaji's mother that she is such a talented artist. Why can't she, she dances so well, acts so well. I'm sure singing will be a very simple thing for her. So I have made 2 songs specially for her and she has to sing it. And she was not very keen about it, but then her mother said, why don't you try, such a big singer, niche aake baithe hue hain. And then she sang those 2 songs and I was very, very surprised that it was such a great treasure. Hema Malini having sung for Kishore Kumar as the music director, and it was lying there. So I called up Sanjeev Goenka ji, the head honcho of Saregamapa, and told him, sir, are you aware of such a treasure lying in your kitty? He said, yes, I'm very much sure. I said, let's do one thing. I have always regarded Kishore Kumar as my idol. Let's recreate the songs. So we did that. Played the moderator to get her to dub the songs, teach her Bengali. The only great part was that this was first time I'm finding someone who speaks Hindi. I mean, to get her to speak Bengali, it was fun for me because Hindi is something that everyone would make fun of when a Bengali speaks that. So she did those 2 songs and she could understand that I was trying to get everything right, the pronunciation stuff. It was her idea. She was gracious to say that अब इतना मेहनत कर रहे हो तो एक डुएट गाना बनाओ हिंदी में, उसमें कुछ अच्छा हो सकता है, ये तो सिर्फ बंगाली लोग सुनेंगे ऐसा. This was something that she really felt, and that's how it actually ignited, it started. And I would say that the most challenging part was to find a concept in which we can make the song, because a regular song, duet song with Hemaji wouldn't be interesting. So I tried to think about a concept, and that's how it all happened. But nothing would have happened without the elan and the composure and the you can never think of a dream girl being so no tantrum. Trust me, it was an absolute pleasure, and it wouldn't have happened without her. That's all. That's the story. जब रीटेक्स की बात आती थी तब क्या होता था कि हमारे एक टेक और कुछ उस पर आसानी से काम हो जाता था, या उस केमिस्ट्री को बनाने में थोड़ा वक्त लगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम हेमा जी आपके साथ गाना गा रही थी. ये जो है हेमा जी बताएंगे. इतना देर मेरे बात करना ठीक नहीं है. हेमा जी. हाँ. Good evening, friends. Warm welcome to all of you. First, I would like to thank, especially first Babul Supriyo, Sanjeev Goenka, and the Sarigama Music Company for giving me this wonderful opportunity to sing. So today I'm here in front of you totally in a different group, right? So it's all because of you. This is all rehearsed. I told her कि कम से कम मेरी थोड़ी तारीफ कर देना. So thank you so much, Hema ji. As he said, जो इन्होंने बताया, everybody knows about it now. But what I will say is, he is a very, very tough music master. He made me sing the way he wanted. I used to get tired. I said, "आज जाने दीजिए, बाद में करेंगे." But he will see that I have to sing the whole thing as he wanted. So that is what I did. But I was very excited singing those 2 Bengali songs, जिसका accent वगैरह सब correction कराया. Though I had sung long back with Kishore Da, it was a great opportunity for me, which I did not realize at that time. But today I value it so much. And अभी उसी सुर में गाने को कोशिश किया तो नहीं हुआ, तो मुझे मेरा सुर थोड़ा सा नीचे उतारना पड़ा. So which he was not agreeable. No, you have to sing in that. I said I can't. Then as you grow older, I think आवाज भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है. And then I tried my best, and then I think it is quite good. That's why music company is releasing it. Otherwise, I don't think we will all be here today. And thanks to Babul for making this such a big occasion, which I never thought. I've been a dancer, actress. In various occasions, I had been in front of you all. But today, I really can't believe that
as a singer, I'm in front of you, which is, I never thought of it. Hema ji, I just please. Just want to thank Jayaji and Rameshji. It's been that's the surprise for us. That's really a big round of applause for Didi and Rameshji. That was a big surprise for us. एक्चुअली सीपी साहब यहाँ बैठे हैं तो मुझे वो डायलॉग याद आ गया. आपने कहा कि भाई एक्टिंग भी करी, डांस भी आप कर रही हैं, फिल्म्स भी डायरेक्ट करी, सीरियल भी डायरेक्ट किया, और गब्बर होता तो पूछता जरूर कौन चक्की का आटा खाते हो, क्योंकि ये सीक्रेट क्या है, कैसे इतनी सारी चीजें मैनेज करती हैं, पब्लिक लाइफ भी आप मैनेज कर रही हैं, तो ये किस तरह से हो पाता है? The life is so beautiful to live. God gives so many gifts as an opportunity. Only thing, we had to open the door and grab the opportunity. That's what I did. You have to reinvent yourself. I came as a dancer, then became an actress, then wanted to make a film, produce it. Then I thought, why not I direct it? क्योंकि इतने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करने के बाद थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही जाता है. So I was able to do, but somehow I could not continue that. Then, of course, singing is, because we have been giving lip movement to so many songs. लेकिन ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गाना गाऊंगी माइक के सामने. जो फिल्मों में थोड़ा बहुत कुछ गाने के लिए कहा था, गुलजार साहब ने एक दो लाइन गा लिया. कल्याण जी आनंद जी के साथ भी एक दूसरा एक गाना गाया था. Yeah, that चंद्रमुखी and उसका था. And then मैं क्या करती थी, when I do my prayer in my house in the morning, I always recite lot of Sanskrit shlokas. बहुत loud मैं बोलती हूँ, गाती हूँ, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है. मैं अपने आप में मस्त होकर मैं गाना, and that too it is सौंदर्य लहरी करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रंथ है by आदि शंकराचार्य. उसको मैंने गाया था, घर में गाती थी. फिर मुझे मन में आया कि why not I make it as a श्लोक कर लेंगे. और I called आसित देसाई जी, a very big music director. तो उनके साथ मिलकर मैंने उसको, उन्होंने थोड़ा बहुत गाने के लिए कहा था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं गा सकती हूँ. एक little inspiration came कि I think I can sing, because of that shlokas. It's very difficult to sing in Sanskrit, but I tried and I think I did quite okay in that. वो रिलीज हुआ, उसके बाद मेरी मुलाकात इनसे हुई. See how the opportunity keeps coming, that's what I'm saying. Right. So इनसे मिली थी तो इन्होंने कहा कि आप ये गाने के लिए कहा, तो हम लोग गए थे कलकत्ता में, जाकर उसका रिकॉर्डिंग किया. Remember 2 दिन. Remember everything. I had a very small cue. When she used to dub, I really used to pester her because I knew that, it's dream girl singing. So there is going to be a lot of expectation. So every line needed to be perfect. And she said, life is beautiful, so beautiful. I mean, it's so easy for someone to say this when you are yourself so beautiful. So the song needed to be really, really beautiful. The only cue that I really followed was that whenever she said something in South Indian, she had an attendant. हाँ बाबू एक और ले लीजिए. बीच में अगर कभी उन्होंने साउथ इंडियन में कुछ बोल दिया ना वो अटेंडेंट को, तो मुझे पे होना चाहिए. So I used to take that cue. कुछ बोला उन्होंने साउथ इंडियन में दरवाजे के पास, हमने हिमा जी आज इतना रहने दीजिए, अगले दिन फिर मिलेंगे. That was only small cue. This is the first time South Indian language appeared very easy to me. I mean, in terms of understanding what the cue was. बाबूदा, कुछ सवाल जो हैं हमारे मीडिया के मित्र हैं जो वो आपसे पूछने चाहते हैं. उससे पहले विक्रम साहब, एक बहुत जरूरी काम है, मैं चाहता हूँ आप उससे निपटा लें. मुझे लगता है ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं, आप प्लीज उसे निपटा लें. और द हाउस इज ओपन फॉर द मीडिया इन केस यू हैव गॉट क्वेश्चंस टू हेमा जी एंड बाबुलदा, प्लीज. Hi, Hema ji and Babul ji over here to your left over here. Firstly, I would like to congratulate you people for coming up with such an enchanting, this album. My question is to Mr. Babul ji. Since Hema ji, she is the dream girl and definitely she is the eternal dream girl. And यहाँ पे सिप्पी साहब भी जो है उन्होंने कहा कि जो है वो शोले जो है मूवी दोबारा नहीं बना सकते. तो was it like जैसा उन्होंने कहा शोले दोबारा मूवी नहीं बन सकती, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपका एल्बम है, सो ये हेमा जी का दिस ड्रीम गर्ल का हैंगओवर है कि ये आप एल्बम बना सके हैं कि और व्हाट लाइक हाउ डिड ऑल दिस हैपन? कीप द क्वेश्चन एज शॉर्ट एज पॉसिबल. या और हर आदमी अगर कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करें तो अच्छा है, मतलब ऑलरेडी. हाँ, सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सी
आप इतना कुछ सोचेंगे ना, trust me, you get completely intimidated by the fact that there is dream girl on the other side of the glass. So the thing is that when you're inside the studio, I just tried to concentrate on the job in hand. I had to keep in mind that, you know, it's her, she has certain expectations from the song. So the song has to sound nice. I mean, and she's not an intimidating person, or the dream girl tag or that Hema Malini tag does not come to attack you at all. She's one real present personality. And I think that made everything so very much more easier. Can we have the next question, please? हेमा जी, दिस इज रवि। एक सवाल पूछना चाहूंगा। इसमें एक लाइन है बिग बी से लेके पाजी, ये लाइन के बारे में मतलब कुछ जानना चाहेंगे, और आपका गाना सुनने के बाद धर्म जी ने क्या कहा, उनका रिएक्शन क्या था, ये भी जानना चाहूंगा। वो रिएक्शन धर्म जी से हम ले लें। आप सबका रिएक्शन अभी देखेंगे ना, अभी डायरेक्ट देखेंगे। और ये गाने का पूरा आइडिया इनका है, बाबुल जी ने कैसा उसको सोचा और बनाया, आई डोंट नो, ही गेव मी द, आई सैंग। आई एम नॉट ए ग्रेट सिंगर, बड़ी ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश है, आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट। लेकिन एक कलाकार होने की वजह से सब कुछ करने की एक इच्छा होती है, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, एक क्यूरियोसिटी बहुत रहता है। उस ढंग से मैंने गाया है, तो आई थिंक ही हैज अप्रूव्ड व्हाटएवर आई हैव सung, बट ही इज वेरी टफ मास्टर, दैट मच आई नो। ये शिकायत है कि तारीफ है? शिकायत भी और तारीफ दोनों है इनसे। हेमा जी, आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है, अगर बता सके आप? मेरे फेवरेट सिंगर्स? लता मंगेशकर जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। को थोड़ा किशोर कुमार का नाम भी ले लेते हैं, बट थोड़ा गुस्से में है कि उस वक्त उनको गाना गवाया था, ऐसे उनके मम्मी को समझा के। तो अदरवाइज किशोर कुमार भी इन्होंने बताया कि बहुत फेवरेट है। सर मेरा सवाल हेमा जी से है। आई एम अब्बास चिश्ती। गाने से पहले आप रियाज कितना टाइम करती हैं? बिल्कुल रियाज नहीं किया। ये आपने बहुत अच्छा किया। ये इसीलिए वो ठीक है। अगर शायद मैं रियाज करती तो इतना ठीक नहीं होता, लेकिन ये गाने के बाद, ये रिकॉर्डिंग होने के बाद, अभी मैं एक मास्टर को रख के, एक गुरुजी को बुलाया और मैं प्रैक्टिस करती हूँ अभी। मतलब कि आगे भी आप सिंगिंग चालू रखेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जवाब देता हूँ आपको। अगर आप दीजिए, लोग बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए, सुनना चाहें ना चाहें, लेकिन अगर मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन को शांति मिलती है, तो मैं जरूर गाऊंगी, और वो परफेक्शन होने तक करेंगे और आपको देखना भी पसंद आप करेंगे। मुझे, Thank you very आप मुझे much, बाद sir. में मिलिए ना एक बार, मैं आपको सारा सवाल का जवाब। वन क्वेश्चन पर पर्सन प्लीज। बाद में शो के बाद में इधर ही हूँ, One डिनर question. करूंगा। हाँ। नो सप्लीमेंट्रीज, नो फॉलो। हेमा जी, हाँ जी। आप प्लेबैक सिंगिंग में किस हीरोइन के लिए बैकग्राउंड मतलब प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगी? हाँ जी, बाद में मिलिए ना एक बार। नहीं, फिर भी इनकी फेवरेट ये पार्लियामेंट, हम दोनों पार्लियामेंट्रियन हैं। मैं दूसरों के लिए नहीं गाऊंगी, मैं अपने लिए। एंड आई रियली, सिंस क्वेश्चन आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आई रियली वांट टू थैंक शबीर अहमद, जिन्होंने बहुत मेहनत की। आई एम श्योर ही इज अ वेरी यंग नाइस लिरिसिस्ट, but I'm sure he's never going to write any more song for me or recommend any of his lyrics to be made into a song with Babul as a singer, because I really nichored him to get what I wanted in the song. And जहाँ वो नहीं हो पाया, बड़े दिल से, in spite of being a Bengali, I wrote some Hindi lyrics, so that was, I really felt very good about it. हेलो, गुड इवनिंग। थैंक यू एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग। हेमा जी, आपसे पूछना है कि इस उम्र में भी आप बहुत फिट है, आपकी फिटनेस का राज क्या है? बाद में आइए बताते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाबू दा, एक दो लाइन हो सकती है? ओके। और हेमा जी, आप तो यहाँ पर हैं और हर बार यादें बहुत ताज़ा होती हैं जब भी आप सामने आती हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आपने पसंदीदा किरदार निभाया। सीता और गीता, एक चादर मैली सी, बहुत सारे किरदार आपने निभाए, पर एक सीन मुझे शोले फिल्म से याद आता है। बाबुल दा, आपको भी शायद याद होगा कि तुम तो बड़े निशानची हो। भाई एक चीज आपको मैं बताऊं, एक इतना बड़ा सरप्राइज तो नहीं है खैर, पर इतना बड़ा एक मोमेंट वेट कर रहा है आज के दिन के लिए कि हमें और एक भी शब्द नहीं करना Fine, चाहिए, एक भी और शब्द नहीं बोलना चाहिए। साइड में जाके खड़े होते हैं और आगे आगे आप लोग देखिए होता है क्या। प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
अब क्या बताऊं, धर्म जी हैं, अमित जी हैं, जया जी, रमेश जी, बाबुल जी। तो बाबुल का ये सपना है कि शोले शोले बार बार कहते थे, तो पूरा शोले अभी आपके साथ में है। So I'm so glad and extremely grateful to all of you on the dais. I don't know what to say. I'm very excited. And गाना जरूर सुनिए, अच्छा लगे ना लगे मुझे नहीं मालूम, but it is quite sweet and nice, I think. That's all I can say. Thank you, Hemaji. Also, few words from your side. Well, I just had one thing in mind that, you know, when Himaji sang a song and it was releasing, the release could be really, really exciting. So we were discussing things with Sanjeev ji, and I just felt that Amit ji and Dharam ji as Jay and Viru actually ignited the Sholay in Basanti, in the film Sholay, and made her do daring things like even, you know, fighting with Gabbar. So now that she's doing something which according to her is something that she has never done before and daring, I mean, it would be great to have the same Dharam ji and Amit ji, the Jay and Viru, still supporting Basanti in her daring act. That was the small idea that I had. I shared with Sanjeev ji, and I'm really, really grateful to Bachchan Saab, Dharam ji, for agreeing to come here and spoke to Himaji. They spoke to Himaji and made this moment happen for all of us. I think it's a great, great moment for, I think, the audience of India, that this moment of Sholay got recreated in the voice of Basanti. She really fired a lot of, in Bengali they say gun, and in Bengali song is also gun. So I think it's a great coincidence, and I'm very happy that happened. That's all. Thank you. Now may I request Dharmendra साहब दो शब्द अगर आप इस वक्त बोलें। आइए। इस खूबसूरत जश्न पर आए मेरा परिवार, ये कैमरास, ये जर्नलिस्ट, मैं फैमिली कहूँगा। हमारा दामन चोली का साथ है, अब दामन कौन है चोली कौन है हम तय करेंगे बाद में। मुझे यहाँ बुलाया गया कि एक अच्छा जय वीरू को तो बंसी बजानी नहीं आती थी ना, फिर ये राधा ये बसंती गाने कैसे लगी? कहते थे ना, राम ने शाम ने बंसी बजाई, ये कैसे अचंबा हो गया है। और उसके बाद वो धन्नो भी धन धन धनाने लगी। हम दोनों पकड़ के एक दूसरे को टांगे पे संभाले हुए, बैलेंस संभाले हुए, लेकिन धन्नो इसके गाने पे, इसका गाना धन्नो पे सवार, सरपट भागता भागता वहाँ रामनगर से हम दोनों को यहाँ मैरियट में ले आया आपके सामने। अब और क्या कहूँ इससे अलावा, बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत प्यारा दिन है। कहने का अंदाज तो कुछ ठीक था, शायद अच्छा लगा हो। लव यू, लव यू। May I request बच्चन साहब से a few words आज की शाम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले हेमा जी का कि उन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रित किया, और इतने सारे लोग जो कि एक ही फिल्म से संबंधित हैं, शायद बड़े सालों के बाद ऐसा हो रहा है। हालांकि धर्म जी, हेमा जी हमारे घर के पीछे ही रहते हैं यहाँ जुहू में। यहाँ से अगर मैं चिल्लाऊं तो धर्म जी मेरी आवाज़ सुन लेंगे, और 2 कदम चलूं तो हेमा जी के यहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन वहाँ कभी मिलना होता नहीं है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी कि आपने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया ताकि हम सब लोग इस मंच पर आकर के मिल सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमेशा, और आप इसी तरह। अभी जया कह रही थी कि ये हेमा जी कितना काम करती हैं, हम लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं। राजनीति में है, राजनीति में है, पार्लियामेंट जाती हैं, मथुरा संभालती हैं, नृत्य भी करती हैं, डांस परफॉर्मेंस होता है इनका, गाना भी गा रही हैं। हम लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं।
मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आज के बाद हम लोग भी कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। आपने जरा दिल से पूछी हमें। पूरी इंडस्ट्री का इंजन बना हुआ है, सब पीछे पीछे चुक 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 करते चल रही है। मैं देखता हूँ इसकी कौन सी स्पीड, ये कैसे कैसे चल रही है। कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जवान बच्चा मेरा बाज नहीं आता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आज पता चलता है इसने ये किया है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा। भगवान इसको बहुत लंबी उम्र दे। मेरा प्यारा प्यारा छोटा भाई है, जी जान से प्यारा है। ये जितना करेगा हम सब के लिए एक सबक बन के रह जाएगा। अब इसके बारे में, और मेरी ये प्यारी सी गुड्डी बेटी है। नहीं, अभी मैं ये कहना चाहूँ कि फिल्म गुड्डी में इन्होंने मुझे बताया कि धर्म जी मैं आपकी फिल्में देखती थी, अनुपमा, देवर, फूल और पत्थर। तो आज भी वो लम्हा, वो बैठे हुए कुर्सी पे मैं ऑटोग्राफ दे रहा हूँ, वो नक्श होके रह गया है। मैं अपनी गुड्डी को कभी भूल नहीं सकता। इन्होंने एक सच्चाई से जैसे मुझसे कहा, ये मेरी बच्ची है, बहन है, सब कुछ है। और इनको भी बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं। और पास में खामखा सफ़ेद मुझ पर लगाए क्यों बैठे हैं? अच्छे खास जवान हैं, बाकी लोग भी तो रंग लेते हैं, आपके भी रंगते हैं। चेहरे पे लाली है, सुर्खी है। ये हमारे प्यारे बच्चे ही कह लो। मेरे पास आए, पहली फिल्म इनके साथ जो मैंने की थी, सीता गीता। कल रात को 1 बजे राम और शाम आ रही थी। मैं देखता रहा, दिलीप कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर मैं सीता गीता को कुछ लगा कि ये इससे ऐसा होता है, ऐसे होता है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई इन्होंने। अब मैंने एक चालू एक्टर का रोल किया, शायद पसंद आया हो जिसने देखी होगी। तो और मैं सुप्रिया के नाम से सुप्रिया चौधरी याद कर बैठा था, लेकिन इनका नाम बाबुल सुप्रिया है। मैं इनको भी सर, आप सिर्फ इतना याद रखिए, जैसे आपने बच्चन साहब के लिए कहा है ना, इन्होंने जो जितने बड़ी बड़ी कमाल की फिल्में बनाई हैं, उसमें बाबुल भी एक फिल्म है। सॉरी नहीं यार, ये तो बाजी मार जाता हर बात में। आपको भी बहुत सी दुआएं। आपने मिलके जो ये खूबसूरत एक आरंभ किया है, इसका ये इस इब्तिदा का इंतहा तो बहुत खूबसूरत होगा, ऐसे लगता है। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। और आप ठीक हैं? कहिए ठीक हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। धर्म जी, मेरी एक तमन्ना है। आप अभी इतने अच्छे शेर व शायरी लिखते हैं, तो वो लिखेंगे और मैं गाना चाहती हूँ उसे। अमित जी भी गाएंगे। अमित जी नहीं गाएंगे तो जाने कैसे दूंगा इनको, छोटा है मुझसे। हाँ, ऐसा कुछ होगा लग रहा है। अब ये शुरू हुआ है तो गजलें भी होंगी और लोगों तक ये अपनी आवाज़ का जादू बिखेरेंगी। और बिखेरना भी चाहिए, तो ऊपर वाला नवाजता है तो जी भर के बांटो। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमा जी। हमारे विवाह को 42 साल हो गए हैं। 42 सालों से मैं गाना ही गा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। काश ऐसी आवाज दी होती तो मैं 45, 46, 47, पता नहीं 100 साल तक गाता रहता। कहते हैं ना, you have to reinvent yourself. So Dharamji has reinvented that he can write so well, so beautiful he writes. So maybe you can also sing. Try it. You must. Babulji, you will do it.
मैं इनको उसका वजन संभालते हुए मुश्किल हो जाएगी। लिखता तो दिल से हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा लिखूं। अब मुझे उकसा दिया है, कुछ बकवा कर लूं। मेरी उनकी राह गुजर, मेरी उनकी राह गुजर एक थी, सर झुकाए गुजर जाती, चुपचाप पास थी। मंदिर जाती कोई जोगन थी, पाकीज़गी में लिपटी फरिश्ता सूरत कोई मुकद्दस मूरत थी। नूर का जिसके ताब न ला सकी हस्ती मेरी, इजहारे मोहब्बत सजदा किया नक्शे पाको उनके और चुपचाप राह गुजर छोड़ दी। नाउ मैं रिक्वेस्ट जया जी, 2 शब्द इस शाम में, इस मौके पर 2 शब्द तो प्लीज। सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। नॉर्मली लोग कहते हैं ऊपर वाला चाहे, तो मैं इस वक्त ये तो नहीं कहूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि जनता चाहे तो आपका ये एल्बम बहुत बहुत लंबा चलेगा। जब धर्म जी कुछ कह रहे थे, he is the only hero whose photograph I kept as a child. तो जब भी मुझे मौका मिलता है उनके साथ स्टेज शेयर करने का, तो मैं बहुत खुशी से आ जाती हूँ। Amazing co-artist, amazing human being, an amazing partner for Hema Malini. 42 साल से गा रहे हैं, नाच में रही। रमेश जी, क्या कहें? आपके लिए तो कुछ कहना ही बेकार है। जो लोग काम करके दिखाते हैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आपका काम बताता है कि आप क्या हैं। और ये जो लड़का है बहुत बदमाश, मिनिस्टर बन गया है मगर ये सब हरकतें कर रहा है। अभी आपकी नौकरी चली जाएगी। दीदी एक बार पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड की नौकरी गई थी, एक दूसरी बार भी चले जाए, कम से कम ड्रीम गर्ल का गाना और ये इतना बड़ा एक जो शोला जो है स्टेज पे आज शाम को दिस हैपेंड, सो आई एम हैप्पी टू गिव अवे माय नौकरी। मैं बिल्कुल यही जवाब सुनना चाहती थी कि कलाकार चाहे कहीं चला जाए, कोई और काम करे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में करे, पॉलिटिशियन बन जाए, मंत्री बन जाए, मगर उसका हमेशा एक भरोसा ये रहता है कि मुझे कला आती। Absolutely, thank you so much. So that is your base and that's your strength. And I just want to tell Amit ji, Dharam ji and Hema ji and our tycoon Ramesh ji, I'm missing Hari Bhai and Amjad. Absolutely. I really am. सिपी साहब, 2 शब्द आज की शाम में। मेरी पहली फिल्म अंदाज की शीतल, दूसरी फिल्म की सीता और गीता, और तीसरी फिल्म की बसंती। आज हम बसंती के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगेगा जब गाना सुनेंगे, देखेंगे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और
मैं जानता हूँ इतना सारा जो आपने काम जिंदगी में किया है, एक और नया अंदाज और आपका देखने को मिले, सबको सुनने को मिले, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। हम बहुत बहुत इंतजार कर रहे हैं। वीरू ने उस वक्त कहा था ना कि इन कुत्तों के सामने मत नाचो। तो बसंती ने सोचा क्या करें, अभी नाचना तो नहीं दिया। बसंती, नॉट हेमा मालिनी। सो गाने लग गई है। कैन वी हैव द जूल बॉक्स ऑन द स्टेज, ताकि इस एल्बम को हम लॉन्च कर सके, इसको अनवेल किया जा सके।